We start with another important topic, combination of capacitors. Combination of capacitor means in which we study about the series combination and parallel combination. और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड हुआ करते हैं, बहुत चांस होते हैं न्यूमेरिकल के आने के, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन. Here we consider three capacitors of capacitances C1, C2, C3 are connected end to end. End to end combination known as series combination. V is the applied potential. V1, V2, V3, these are the potential drop across the capacitors. Q is the charge. So charge will be same across each capacitor because there is no further division of the charges. There is a single path. So charge will be same in series combination, while potential will be different across the different capacitors due to different capacities. So net potential will be sum of their individual values, and we know that V goes to Q by C. तो V1 हो जाएगा Q by C1, V2 हो जाएगा Q by C2, V3 Q by C3. Putting in first, Q upon C equals to Q 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, or 1 upon C equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So reciprocal of net capacitance in series combination is equals to sum of reciprocal of their individual values. Means net capacitance will decrease in series combination. Clear? Now discuss about the parallel combination. Parallel combination, and should be common, or all positive plates at one end and all negative plates other end. Such type of combination known as parallel combination. Here are the three capacitors of capacity C1, C2, C3, and connected in parallel across the potential V. V is the potential between A and B. Now, all the capacitors connected between A and B, that's why potential remains same in parallel combination. While there are three possible paths, that's why charge divided. All positive at one end, all negative at other end. Such type of combination known as parallel combination. So potential remains same, charge will be different, and charge is the conservative property, and Q equals to C. Q1 C1V, Q2 C2V, C3V. So net capacitance in parallel combination will increase. Net capacitance in parallel combination will be greater than any individual value. So it's about the series in parallel combination. तो क्या conclusion मिला? अगर चार्ज सेम है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर चार्ज डिफरेंट है तो पता नहीं. चार्ज सेम है तो सीरीज है, पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल है, चार्ज डिफरेंट है तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा उसको. इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि चार्ज डिफरेंट तो पैरेलल, ऐसा नहीं. कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चल रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, देखें जरा.
कुछ एक नुमाइकस लेके चल रहे हैं हम लोग। C1 दिया हुआ है 40 माइक्रोफेरेड, C2 दिया हुआ है 60 माइक्रोफेरेड, C3 भी 60 माइक्रोफेरेड, C4 भी 60 माइक्रोफेरेड, and C5 and C6 both are 10 microfarad. And calculate the net capacitance between A and B. तो बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने के। बैटरी लगा, यहाँ चार्ज Q आया और डिवाइड हो गया, यहाँ Q1 हो गया, सपोज यहाँ Q2 हो गया। अब ना देखो, इस पे भी Q1 आया, इस पे भी Q1 आया, इस पे भी Q1 आया, तो इन तीन कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है, इसलिए तीनों कैसे हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले हम तीन को सॉल्व करेंगे। 1.60 1.60 1.60 हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ये दोनों पैरेलल में हैं, दोनों के एंड्स कॉमन हो गए। ये प्लेट यहाँ कनेक्टेड, ये प्लेट यहाँ कनेक्टेड, ये प्लेट यहाँ कनेक्टेड, ये प्लेट यहाँ कनेक्टेड। ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। पैरेलल में हो गए तो कितना हो जाएगा ये? 10 + 10 20। तो अब डायग्राम ये बन जाएगा। It is also 20 and is 40. Now these two again in parallel. दोनों के ends common हो गए, दोनों के ends common हो गए, तो parallel हो गया। 40 माइक्रोफैराड हो गया, ये पहले से 40 था, और अब ये सीरीज में आ गया। 1.40 + 1.40 = 1.C, तो C = 20 माइक्रोफैराड। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और जानना हमें C1 5 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 15 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, and calculate the net capacitance between A and B, जबकि इन दोनों में कैपेसिटेंस नहीं लगा हुआ है। तो अब इस सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना। A से E तक कोई कैपेसिटर नहीं, A से E तक कोई कैपेसिटर नहीं, लेकिन A से D तक एक कैपेसिटर है C1। E और D आपस में मिले हुए हैं 10 के साथ, it is C2, that is 10। D और F के साथ कुछ भी नहीं, E और F C3 के साथ कनेक्टेड है, और F और B के साथ एक कैपेसिटर है। अब ये सर्किट बन गया।
इसको ब्रेक कर दिया, ए से ई तक कुछ भी नहीं, ए से ई तक कुछ भी नहीं, ए से डी के बीच में C1 है, C1 आ गया, डी और ई के बीच में 10 है, डी और ई के बीच में 10 आ गया, C2 आ गया, और डी और एफ के बीच में कुछ भी नहीं है, ई और एफ के बीच में 15 है, C3 है, और ये इस तरह। अब अगर इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा तो ए अपने आप ई तक पहुंच जाएगा और डी एफ तक पहुंच जाएगा। मतलब ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये तीनों पैरेलल में काउंट हो जाएंगे। ए और ई एक ही जगह आ गए, ए और ई ये तीनों पैरेलल में काउंट हो गए, और ई एफ और डी एक साथ आ गए, ये तीनों पैरेलल में हो गए, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 5 + 10 + 15 30 हो गए, और अब ये 30 और ये 30 आपस में सीरीज में हो गए, माइक्रोफैरड हो गया। एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल है, वो जरा देखें आप, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और बोर्ड में 2 बार आ लिया। देखें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में है ये 25, एक बार 5 नंबर में आ चुका है, एक बार 3 नंबर में आ चुका है। हंड्रेड पिकोफैरेड, 200 picofarad, it is also 200 picofarad, it is 100 picofarad. Statement सुने क्वेश्चन की, obtain the equivalent capacitance, determine the charge and potential across each capacitor. नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। तो दीज आर इन सीरीज, तो 1/200 + 1/200 100 हो जाएगा। ये यहां पर जुड़े नहीं, अलग चीज है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, 200 हो जाएगा, ये जाएगा 200 पिकोफैरेड और एक हो गया 100 पिकोफैरेड। नाउ दीज आर इन सीरीज, टू 200/3 पिकोफैरेड, ये नेट कैपेसिटेंस आ गया, इज द नेट कैपेसिटेंस। नाउ टोटल चार्ज निकाल सकते हैं हम लोग, Q = C, टोटल चार्ज 200/3 पिकोफैरेड, 10⁻12 कर दो, इनटू B है 300, 2 10⁻8 कूलम हो गया। नेट कैपेसिटेंस आ गया, टोटल चार्ज आ गया। अब जो चार्ज यहां से चलेगा, यहां 2 पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन आपको पता है जितना चार्ज बैटरी से जाता है उतना वापस भी आता है।
चार्ज विल बी सेम। तो टोटल चार्ज होगा वही C4 के लिए होगा, यानी कि Q इक्वल्स टू Q4 इक्वल्स टू 2 10 पावर माइनस 8 कूलम। कैपेसिटी पता है, चार्ज पता है, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू Q बाई C। V4 आ गया 200 वोल्ट, तो V4 भी आ गया, Q4 भी आ गया। टोटल पोटेंशियल कितना था? 300 वोल्ट। कितना ड्रॉप हो गया? 200। बचा कितना? 100 वोल्ट। ये दोनों वायर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस वायर के लिए भी 100 होगा और इस वायर के लिए भी 100 होगा। As you know that potential will be same in parallel combination. That's why V1 कितना हो गया? 100 वोल्ट। V1 के अक्रॉस 100 हो गया, पोटेंशियल आ चुका है, चार्ज निकालना है। Q1 इक्वल्स टू C1 V1 100 10 to the power minus 12 into 100 10 to the power minus 8 कूलम। ये भी आ गया। नाउ अब इसके लिए देखिए, इस पूरे के लिए 100 है, दोनों कैपेसिटी बराबर है, और सीरीज में नेट पोटेंशियल एल्जेब्रिक सब हुआ करता है। इसका मतलब टोटल 100 है, कैपेसिटी बराबर है, पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होगा, तो V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू 50 वोल्ट। 50-50 हो गया। नाउ Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू C2 V2 200 10 to the power minus 12 into 50, so it is 10 to the power minus 8 कूलम। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, एक बार 3 मार्क्स में और एक बार 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन है। दोबारा देख लो। These are in series, 100 हो गया, ये और ये पैरेलल में हो गए, 200 हो गया, ये 200 100 के साथ सीरीज में आ गए, 200/3 हो गया। टोटल चार्ज निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज आ गया। जितना चार्ज बैटरी जाता है उतना वापस भी आता है। यहाँ चार्ज डिवाइड हो गया लेकिन वापस कंप्लीट आएगा, तो C4 के अक्रॉस चार्ज टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। जब चार्ज पता लग गया, कैपेसिटी पता है, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। 300 वोल्ट था, 200 ड्रॉप हो गया, 100 बचा। ये दोनों वायर आपस में पैरेलल है, तो इसके लिए भी 100 होगा, इसके लिए भी 100 होगा, तो C1 के लिए 100 हो गया, चार्ज निकाल सकते हैं। दो कैपेसिटर लगे हुए सीरीज में, दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड होगा, 50+50, और चार्ज नोट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं 2 से लेकर 3 नंबर में। अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस इनसाइड द कैपेसिटर।